Dear students, in our today's class, we will take the chapter 4, Organization of Data. In this chapter, there are two things: classification of data, and statistical series. So, first of all, methods of classification. There are four types of methods on the basis of time, quantity, space. The data can be arranged on a particular base. हमें यहाँ डेटा को एक पर्टिकुलर बेस पर अरेंज करना है. तो जिस बेस पर अरेंज करेंगे, दिस इज द मेथड. सो फर्स्ट मेथड इज अकॉर्डिंग टू द टाइम. Statistical data can be classified according to their characteristics. It can be grouped on the following basis. डेटा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इफ वी टेक द बेस ऑन ए टाइम. अब टाइम पर लेंगे. टाइम पर कैसे? जैसे ईयर, मंथ. So these are the according to the time. According to time. And this method is called chronological classification. Chronological classification. In this classification, we can take the data on a particular base. And here the base may be year, month, weeks, etc. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं कि एक तो ईयर्स, और एक कॉलम में आपका ईयर हुआ, सेकंड में हो सकता है प्रोडक्शंस या पॉपुलेशंस, नंबर, फ्रीक्वेंसी, पॉपुलेशन. ईयर हम ले सकते हैं 2000, 2001, 2002 एंड सो ऑन. या पॉपुलेशन हम ले सकते हैं इन करोड़. ऑन ए पर्टिकुलर सिटी, ऑन ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, वी कैन टेक the population. Suppose 5 crore, 7 crore and 2 crore and so on. This type of classification is called chronological classification, and it is based on time. Next, according to area. एरिया पर बेस भी हो सकता है. एरिया पर कैसे? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इस टाइप से हम कंसिडर करें अकॉर्डिंग टू एरिया. और इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. द कलेक्टेड डेटा आर ग्रुप्ड विथ रेफरेंस टू द लोकेशन ऑन ज्योग्राफिकल डिवीजन. जो अपना पर्टिकुलर डिवीजन है, different area wise, such as countries, state, cities, district, any colonies, etc. This type of classification is called geographical classification. Here the data can be taken in the alphabetical order also, in the ascending order or the descending order. Frequency can be taken ascending or descending. ये भी हम ले सकते हैं. For example, किसी पर्टिकुलर कंट्री को ले लो. यार द मेन बेस इज एरिया. कंट्रीज एंड yield of wheat production. इन टन हो सकता है, 1 किलोग्राम, जैसा भी हो आप बेस ले सकते हो. Here the main base is particular area. एरिया में कंट्रीज,
India, any other, Brazil, America, China, and so on. यहाँ पर आप टर्न्स के अंदर 2000, 2500, 3000 and 3500 and so on. This type of classification is geographical classification. Next, qualitative classification, and last is the quantitative. Both the two type, quality and quantity. First, time, space, that is the area, and next third is the according to the attributes. Attribute means we cannot measure in quantity. For example, the honesty, blindness, the male and female different characters. We can divide the population in on the basis of attributes, according to the attributes. The main base is qualitative. Qualitative classification. The data are grouped with reference to quantity, not on the quantity, quality or the attributes which cannot be measured, जिनको हम measure भी कर सकते हैं, such as literacy, nationality, employment, religion, etc. We cannot measure in क्वांटिटी. इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल हम पॉपुलेशन को ले सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सिटी की पॉपुलेशन, फिर उनको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, मेल फीमेल. फिर मेल के अंदर भी हो सकते हैं कि एम्प्लॉयड एंड नॉट एम्प्लॉयड. Same to same this thing. This is the division of based on the attributes. फिर उसमें married, unmarried and various manifold classification can be included in the attributes. There is no need for the measuring in quantity. Directly we can divide in this way. And last is the according to the quantity. That is the quantitative classification. So there are four types of classification. First time, second आपका space, next attributes, and last is the attribute means the qualitative based, and last is the quantitative. So according to the magnitude or variables, that is according to the variable. Quantitative classification. ये quantity पर based रहेगा. Simple है. The collected data grouped with reference to the characteristics which can be measured and numerically described such as height, weight. यहाँ पर numerical describe कर सकते हैं. Numerically can be described. For example, height, weight. तो सिंपल है. आप अपनी पर्टिकुलर क्लास के अंदर भी स्टूडेंट्स एंड देयर हाइट्स या वेट भी ले सकते हैं.
पर्टिकुलर स्टूडेंट हो सकता है ABCD, या आपका ग्रुपिंग में भी कर सकते हैं रोल नंबर वाइज, रोल नंबर में भी ले सकते हैं 1 2 3 4, या पर्टिकुलर नेम में ले सकते हैं, एंड हुज वेट 60 kg, 65 kg, 70 kg, 72 kg and so on. This type of classification is called quantitative classification. Next topic is in the chapter 4 is first is the classification. How can we classify the data on a particular base? यहाँ पर भी सेकंड है कि स्टैटिकल सीरीज, यहाँ पर भी डेटा को एक सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर लॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करना है. तो इन ए स्टैटिकल सीरीज देयर आर टू वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल ईयर्स एंड प्रोडक्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड वेट, ये आपके वेरिएबल्स हुए. तो इन व्हाट इज द स्टैटिकल सीरीज? इफ टू वेरिएबल्स और द क्वांटिटी कैन बी अरेंज साइड बाय साइड. उनको हम अरेंज करेंगे साइड बाय साइड कैसे? जैसे आपका ईयर है तो 2000, 2001, 2002 एंड सो ऑन. वी कैन टेक द इंक्रीजिंग और द डिक्रीजिंग. तो if two variables or the quantity can be arranged side by side so that the measurable difference in one corresponds with the measurable difference in other. So measurable difference of one variable as correspondence to the measurable difference of other. For example, years and number of students. The year can be changed 2000 to 2001. Yet definitely the number of students is also changed. It may be increasing or the decreasing. So these are the correspondence difference. यहाँ पर suppose number of student है 5, on a particular school ले सकते हैं कि स्कूल के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट हैं. On a particular year 2000, suppose take the 500 student, next may be increasing or the decreasing, 550 हो सकता है. 2002 it's maybe 490, again 2003 it's maybe 600 and so on. So the measurable difference of one variable as correspondence to the measurable difference of other, the result is said to form a statistical series. So this result is to form a statistical series. ये भी अपने आप में एक statistical series है. So and here the statistical series are based on the two types. यहाँ पर statistical series को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, on a general character and on a construction. अब जनरल कैरेक्टर में क्या, हमें इस पर्टिकुलर टेबल को बनाना है, सीरीज को बनाना है, तो वहां पर हम उनका दो डिवीजन रख सकते हैं. अब ये पर्टिकुलर किसके लिए बात हो रही? ओरिजिनल डेटा. ओरिजिनल डेटा इज कॉल्ड रो डेटा, जो हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं. एंड रो डेटा आर इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में. एंड फॉर द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इट्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इन डिफरेंट वेज. ये सब उनका टाइप्स चल रहा है. तो स्टैटिकल सीरीज इज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट. So this type in the types of series there are two types. First, on the basis of general character. And second, on the basis of construction. डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन के बेस पर ही. कंस्ट्रक्शन कैसे? हमें उस डेटा को लेना कैसे है. जैसे आपका डेटा रो डेटा है, सपोज आपके स्मॉल ग्रुप है और 25 डेटा ही है, तो आप डायरेक्टली उनको इंक्रीजिंग ले लो, डिक्रीजिंग ले लो. ये आपका स्पेशल इंडिविजुअल या कंस्ट्रक्शन बेस हो.
वन बाय वन वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर। अब जनरल कैरेक्टर में भी सिंपल से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट टाइम सीरीज, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आपका जो डेटाज है उनको आप पर्टिकुलर टाइम को आप बेस मान के चलो, उसके अकॉर्डिंग आप सीरीज बना लो, तो ये आपका जनरल कैरेक्टर होगा। कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम को, अब टाइम में कैसे, जो अभी तक एग्जांपल लिए वो सारे आपके स्टैटिकल सीरीज टाइम पर बेस्ड है। ईयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ईयर एंड प्रोडक्शन। सेकंड स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज ये स्पेस पर बेस्ड है, ज्योग्राफिकल डिवीजन। तो जो अभी तक पहले हमने डिस्कस किया वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो सेकंड स्पेशल सीरीज में हम ले सकते हैं कंट्रीज की पर कैपिटल इनकम हो सकती है। तो आपका फर्स्ट हो गया आपका कंट्रीज, और इन द सेकंड कॉलम पर कैपिटल इनकम, एंड इट मे बी ऑन ए लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, दिस टाइप्स। नेक्स्ट कंडीशन सीरीज। कंडीशन सीरीज आप इन सबसे फेमिलियर हो, बस उनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना। अब कंडीशन कैसे? कंडीशन भी बिल्कुल एक पर्टिकुलर डेटा किस में रहे, कंडीशन में। कंडीशन भी बिल्कुल आप इजी वे में देखते हो, 0 से 10, 10 to 20, 20, 30, ये आपका ग्रुपिंग कंडीशन है। कंडीशन कैसे कि 0 से 10 मार्क्स वाले बच्चे एक पर्टिकुलर फर्स्ट ग्रुप में। सो दिस इज द ए सीरीज ऑफ values of some variables made according to a condition is called condition series। यहाँ पर आप ले सकते हो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। 0 से 10 मार्क्स वाले बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे, मान लो 2 बच्चे, 10 to 20, 3, 20 to 30, 5 एंड सो ऑन। इट्स अ पर्टिकुलर कंडीशन। इस मार्क्स की एक कंडीशन हो गई, इसके बीच में आने वाले बच्चे इस फर्स्ट क्लास इंटरवल में। सो इट्स ए, और भी ले सकते हैं इनकम एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। सो दिस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेस ऑन अ जनरल कैरेक्टर एंड बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ये तो हो गया आपका 3 टाइप से जनरल कैरेक्टर पे, टाइम, स्पेस और कंडीशन। इस टाइप का जो डिवीजन है वो डिवीजन आपका जनरल कैरेक्टर के अंदर रहेगा। अब नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में भी 3 टाइप्स है। फर्स्ट सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि आपने जैसे डेटा कलेक्ट किए, मान लो 10 बच्चों के डेटा कलेक्ट किए उनके वेट के, तो वेट है 50, किसी का है 49, किसी का है 55, फिर 37 एंड सो ऑन, इस टाइप से। अब ये अभी आपका लॉजिकल ऑर्डर नहीं है यहाँ पर। अब इसको लॉजिकल ऑर्डर में करना है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ले लो, सबसे हाईएस्ट पहले ले लो 55, फिर 50, फिर 49, 37 एंड सो ऑन, इस टाइप से। So this type of a particular individual observation we can take it. So this is the individual observation. Second, discrete series, and last is the continuous series. And you are familiar with the discrete and continuous series. Both are the frequency distribution. Second is the discrete. Discrete series and continuous series. Both the, अब देखो इंडिविजुअल में कोई फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन हम एक एक को इंडिविजुअल ले रहे हैं। अब यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो बोथ आर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है।
can take an example for understanding the discrete and continuous series. बिल्कुल easy है. Discrete series. In a discrete series, we will take the single observation or a particular units. So the discrete or discontinuous variable are those which are exact or finite and are not normally fractions. In a discrete series, we will take the particular exact or the finite data. अब exact और finite data कैसे? जैसे number of children in a family. तो number of children in a family, we will take the 2 or the 3 or the 4 or 1. अब यहाँ पर number of children को या exact 2 ही लेना होगा. 2.2 नहीं ले सकते, 3.2 नहीं ले सकते या 4.2. So this type of division is discrete and in a particular systematic order in a series, that is the discrete series. और discrete series का example बिल्कुल आप लोगों ने पहले से ही देखे हैं और बस उसको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी टेबल डिस्क्रीट में रहती है और कौन सी कंटिन्यूस में. सो इन ए डिस्क्रीट सीरीज वी विल टेक द एग्जैक्ट और द फाइनाइट वैल्यू. अब एग्जैक्ट और फाइनाइट कैसे? जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ चिल्ड्रन. सेकंड कॉलम बन जाता है टेली मार्क्स और फिर फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, 1, 2, 3 and 4. या टेली मार्क्स लेते हैं हम. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 3, 2, 5, 2. तो इस टाइप का जो डिवीजन है ये एग्जैक्ट है. यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन या तो 0 है या फिर 1 है, 2 है या 3 है. इस टाइप से जो एग्जैक्ट डिवीजन रहे, जो फाइनाइट वैल्यू फिक्स, वो आपका रहेगा डिस्क्रीट सीरीज. अब कंटिन्यूस सीरीज में भी 0 से 10, 10 to 20 ये आपका कंटिन्यूटी में. सो इन ए कंटिन्यूस सीरीज वी कैन टेक द इंक्लूसिव और द एक्सक्लूसिव मेथड. वो भी आप लोगों ने देखा है. इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कैसे? इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव में डिफरेंस था कि 0 से 9, 10 to 19, फिर 20 से 29. These are the difference of inclusive and exclusive. So in a continuous series, continuous variable are those that one in unit of measurement which can be broken down into the infinite gradients. On a particular gradients, on a possibility, we can arrange the data. So we will take the continuous series, the data in this way, inclusive and exclusive. Inclusive में इस टाइप से 0 से 9, 10 to 19 और 20 से 29 और इसके साथ में फ्रीक्वेंसी रहेगी. एक्सक्लूसिव का डिफरेंस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30. ये इस टाइप के जो डेटा रहेंगे, साथ में फ्रीक्वेंसी दोनों के साथ है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ वर्कर्स. सो दिस टाइप्स ऑफ डिवीजन इज द मेन डिफरेंस ऑन ए बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर एंड ऑन बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में अगर आप डायरेक्टली पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को लेते हो तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू के साथ में फ्रीक्वेंसी तो डिस्क्रीट, और ग्रुप के अंदर और फ्रीक्वेंसी है तो कंटिन्यूस. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन.